Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. As you know that we discuss about the consequences of the theory of relativity, means we discuss about the results of the special theory of relativity, and we discuss a few results in our previous lectures that we discussed that length contracted when object move with relative speed, time of an event dilated when the frame of reference or observer move with relativistic speed. Now we discuss the last result of special theory of relativity, that is mass dilation. Mass dilation, we mean that the mass of an object increases as its velocity increases. When object move with large velocity, with means moving with a velocity or speed that is comparable with speed of light, then its mass increases. That we call the mass dilation, and it is the result of the special theory of relativity. We find it when object move with very high speed, then its mass increases. That we call the mass dilation. Let's we consider a object of mass m. It is a ball and it's having certain mass m naught, which is measured by an observer or a person which is in the same frame of reference. Mean this is the actual mass of the object which is measured by a person. With respect to that person, this object is in state of rest. Now if this object, this ball, move with a speed that is comparable with speed of light, then the mass measured by this person is increases, or the frame of reference in which this mass exists, its move with respect to observer who is outside that frame of reference. Then for that observer outside that frame of reference, its mass also increases. That we call the mass dilation. The new mass which is found by which is found by a observer outside that frame of reference is m, and this mass is equal to actual mass divided by relativistic factor 1 minus v square divided by c square. अब आपके पास एक बॉल है जिसका मेस आपके पास एम नॉट है. डेट मेस को आप बोलते हो एक्चुअल मेस, और कोई भी ऑब्जर्वर जो है वो विद इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें जो मेस एग्जिस्ट करे वो उसको मेजर करे. अब अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट जो है बॉल लेट्स आपके पास है, ये अगर मूव करे विथ वेरी लार्ज स्पीड, देन इसका जब बस मेस होगा वो इस सेम ऑब्जर्वर जब ये मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू डेट ऑब्जर्वर, आपके पास मेस जो है अब जो विद लार्जर स्पीड जब ये मूव करेगा आपके पास न्यू जो मेस आएगा वो आपके पास ओरिजिनल मेस से आपके पास इंक्रीज़ करेगा. जैसे जैसे इसकी स्पीड ज़्यादा होगी, जितने हाई स्पीड के साथ मूव करेगा इतना इसका मेस ज़्यादा होगा. न्यू जो आप मेस होगा आप उसको बोलोगे रिलेटिविस्टिक मेस, एंड डेट रिलेटिविस्टिक मेस इक्वल टू ओरिजिनल मेस एक्चुअल मेस डिवाइडेड बाई द रिलेटिविस्टिक फैक्टर. अब अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा, लेट्स आपके पास ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो मूव कर रहा है विद स्पीड कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट 0.8 टाइम विद स्पीड ऑफ लाइट, 0.6 टाइम विद स्पीड ऑफ लाइट. जब आपके पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप कंसिडर कर रहे हो, सारी जो आपके पास कंसिक्वेंसेस आपने पढ़े स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए अप्लाई करते हो, उसमें आपके पास न्यूटन लॉज वैलिड होते हैं. तो यहाँ पे जब भी आपके पास मूव करेगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो आउटसाइड आपके पास कोई ऑब्जर्वर होगा जिसके लिए आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस मूव कर रहा है, इसमें ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसके लिए आप इसको जो न्यू मेस होगा, जैसे ही आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की स्पीड ज़्यादा होगी तो आउटसाइड ऑब्जर्वर के लिए आपके पास जो न्यू मेस आएगा रिलेटिविस्टिक मेस होगा वो ग्रेटर होगा एज कम्पेयर टू द एक्चुअल मेस ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड दैट रिलेटिविस्टिक मेस यू फाउंड बाय यूजिंग दिस फैक्टर, दिस फार्मूला. लेट्स यू हैव अ बॉल whose mass is 0.5 kg and it's measured by observer which is in state of rest initially. Now if this observer, this person throw that ball with very high speed, that the speed of the ball become equal to 0.9 times the speed of light, then the mass of same ball increases. Now the same person who throw that ball, for that person the mass of the ball increases, means mass dilated. Now the mass become m naught divided 1 minus v square divided by c square, and if you put the value of v you have this mass 1.15 kg. आपके पास एक बॉल थी,
ओरिजिनली आपके पास वो एक लेट सुपरमैन है, आपके पास जो इसकी पावर बहुत ज़्यादा है, तो आपके पास उस सुपरमैन के हाथ में आपके पास वो अर्थ सरफेस पे खड़ा है या किसी रूम के अंदर है, तो उसमें आपके पास जो बॉल थी अर्थ सरफेस पे खड़े, ठीक है। आपके पास अर्थ सरफेस पे उसके हाथ में जो बॉल थी, तो आपके पास उसका जो मेस था वो 0.5 किलोग्राम था, जिसको आप उसका एक्चुअल मेस बोलते हो m0 से आपने इसको डिनोट किया। अब इस सुपरमैन ने उस बॉल को थ्रो किया और इतनी पावर से थ्रो किया कि अब इतनी फोर्स उस पर लगाई कि आपके पास उसकी जो स्पीड है उस बॉल की वो 0.9 टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट है। अब जब आपके पास बॉल मूव करेगी विद रिस्पेक्ट टू सुपरमैन विद डेट स्पीड, तो उसका जो मेस है वो आपके पास इंक्रीज कर जाएगा। न्यू उसका मेस क्या होगा, m इज इक्वल टू रिलेटिविस्टिक मेस आपके पास होगा एक्चुअल मेस डिवाइडेड बाय रिलेटिविस्टिक फैक्टर। रिलेटिविस्टिक फैक्टर में आप जब स्पीड ऑफ बॉल पुट करोगे तो आपके पास न्यू जो मेस आएगा डेट्स इक्वल टू 1.15 kg, मीन्स एज the speed of the object increases originally or initially its speed is 0 because it's in the hand of the superman, so it's instead of rest, this ball is instead of rest having speed 0. So when it start moving with high speed, then its mass increases. This increase of mass is measurable only when object is moving with very large speed. You discussed many cases in your previous lectures. You take the motion of different objects, but you take the speed of that objects, very small change of speed or just speed you take, it's very small, it's 100 meter per second, 50 meter per second, 1000 meter per second या किलोमीटर पर सेकंड, आप जितने भी कंसिडर करते हो आपके पास बहुत कम स्पीड आती है, ठीक है। किलोमीटर पर सेकंड तो आपके पास नहीं होती, किलोमीटर पर आवर या इस तरह आप जो लेते हो, तो आप कम जब स्पीड के साथ ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होगा तब मेस उसमें डायलेट नहीं करता। मेस की डायलेशन जब आपके पास मेस का इंक्रीज तब आता है जब आपके पास ऑब्जेक्ट जो है वो वेरी हाई स्पीड के साथ मूव कर रहा हो, मीन कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, नॉट इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, बहुत हाई स्पीड हो लेकिन वो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के करीब स्पीड के साथ जब मूव करेगा तब उसका जो मेस होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अब आपको पता है कि आप ये सारे जितने भी केसेस डिस्कस कर रहे हो, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो आपकी जितनी भी डिस्कशन थी, यू कंसिडर द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड यू नो डेट इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डेट फ्रेम ऑफ रेफरेंस विद आइदर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड और इट्स मूविंग विद और इट्स स्टेशनरी, इट्स हैविंग जीरो स्पीड। सो and inertial frame of reference, you know that all the Newton laws are valid. So according to Newton law, as the mass of the object increases, then acceleration for same object decreases. Means आपके पास जितना बॉडी जो है more and more massive होती जाएगी, तो उसमें जो आपके पास उसी सेम स्पीड के साथ उसको मूव करवाने के लिए आपको एक्स्ट्रा जो एनर्जी बाहर से देनी पड़ेगी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। मीन्स आपके पास पहले जो लेस मैसिव बॉडी थी तो आपको सर्टन एनर्जी आपके पास, अगर उसको आप 0.9 टाइम्स c के साथ मूव करवाना चाह रहे हो तो उसको आपके पास कोई सर्टन एनर्जी दोगे तभी वो मूव करेगी। अब अगर आपके पास वो उसके मेस ज़्यादा हो गया तो मेस जितना ज़्यादा होगा उतनी सेम स्पीड के लिए आपके पास 0.9 टाइम्स c के साथ कुछ कॉन्स्टेंट स्पीड के साथ आगे उसकी मोशन कंटिन्यू करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास एनर्जी देनी पड़ेगी। अब जब आप एनर्जी दोगे, अब ये नहीं होगा कि जितनी आप एनर्जी ज़्यादा प्रोवाइड करते जाओगे वो आपके पास उसकी स्पीड ज़्यादा होते होते आपके पास वो स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच कर जाएगा। ऐसा नहीं होगा। आप जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी यहाँ पे आप प्रोवाइड करोगे तो बस वही एनर्जी जो है अकॉर्डिंग टू रिलेशन इज इक्वल टू mc², जो आपके पास एनर्जी जो है वो आपके पास कन्वर्ट हो जाएगी मेस के साथ। आपके पास किसी भी मेस के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए इट्स नॉट पॉसिबल डेट इट्स मूव विद स्पीड ऑफ लाइट, बिकॉज व्हेन इट्स मूव विद स्पीड ऑफ लाइट देन इट्स मेस बिकम इन्फिनिटी and you require the infinite force, infinite energy to move that object. It's not possible that the certain object have the infinite mass. अब आप जितना आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट होता जाएगा जिसकी स्पीड इंक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली उसका मेस डायलेट करेगा, मेस भी इंक्रीज़ होगा और आपको मोर एंड मोर एनर्जी चाहिए होगी सेम एक्सलेशन के लिए, सेम स्पीड में उसको मोशन को कंटिन्यू रखने के लिए। तो आपके पास जो आप एनर्जी प्रोवाइड करोगे वो वाली एनर्जी जो है वो आपके पास एज अ काइनेटिक एनर्जी कुछ कैरी करेगा। मीन्स जितनी एनर्जी दे रहे हो सारी की सारी उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ नहीं करती जाएगी, कुछ एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी मेस में और कुछ एनर्जी जो आपके पास एज अ काइनेटिक एनर्जी जो ऑब्जेक्ट लेके आगे मूव करेगा। तो टोटल एनर्जी जब इसकी आप फाइंड करना चाहोगे तो डेट एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस द एनर्जी डेट इज कन्वर्टेड इनटू मेस। तो आपके पास बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट भी है, अगर आपके पास वो स्पीड ऑफ लाइट से आप उसको मूव करो, बहुत निग्लेजेबल मेस का भी है। स्पीड ऑफ लाइट को मूव करवाने के लिए आपको बहुत इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी। लेट्स आपके पास जो एनी ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से जब मूव करेगा, यू नो डेट इट्स व्हेन ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड ऑफ लाइट और कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट, नाउ इट्स मेस डायलेटेड, द रिलेटिविस्टिक मेस यू गेट बाय दिस एक्सप्रेशन। नाउ इफ यू मूव द ऑब्जेक्ट विद स्पीड ऑफ लाइट, दिस v इक्वल टू c।
So when you put instead of this v c, then you have this expression m is equal to m naught 1 minus c square divided by c square. This c square divided by c square you have 1. सेम वैल्यू जो सेम वैल्यू जब डिवाइड करते हैं आपको 1 आता है, तो 1 माइनस 1 आपके पास हो जाएगा 0. एनी value divided by 0 become infinity. So the relativistic mass of the object when object move with speed of light become infinity. So when mass become infinity, then you means you require the infinite amount of energy to move that object. You know that greater will be the mass, greater will be force required to move the object, and less will be the mass, less force you require to move the object with same speed. तो आपके पास बहुत स्मॉल ऑब्जेक्ट का भी आपके पास अगर स्मॉल मैस का ऑब्जेक्ट भी है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के साथ आपने उसको मूव करवाना है, तो आपके पास उसका मैस जो है स्पीड ऑफ लाइट के लिए इनफाइनाइट मैस होगा. जैसे स्पीड ऑफ लाइट के साथ मूव करेगा आपके पास इनफाइनाइट एनर्जी, उसके जो मैस है वो इनफाइनाइट हो जाएगा. और इनफाइनाइट मैस को मूव कर जितना आपके पास मैस जैसे इनफाइनाइट होगा, तो इनफाइनाइट अमाउंट की आपके पास एनर्जी भी रिक्वायर होगी टू मूव डेट ऑब्जेक्ट. और डेट इज़ नॉट पॉसिबल डेट any object have mass equal to infinity and you require the infinite energy to move that object. Simply you can say that this is not possible for any object that's move with speed of light. It's move with very high speed with certain factors of the speed of light, but it's not move with equal speed, that is the speed of that equal to speed of light 3 into 10 power 8 मीटर पर सेकेंड. उससे कम किसी भी स्पीड में 0.9 टाइम्स सी, 0.8 टाइम्स सी, 0.7 टाइम्स सी आप मूव करवा सकते हो, बट नॉट यू मूव द ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली इक्वल टू सी, क्योंकि सी के साथ जब आप उसी स्पीड के साथ मूव करवाओगे, जो स्पीड ऑफ लाइट है उसका जो मैस है वो आपके पास इनफाइनाइट हो जाएगा. और मैस जब आपके पास इनफाइनाइट होगा, उसको मूव करवाने के लिए आपको इनफाइनाइट अमाउंट की एनर्जी चाहिए होगी, जो आपके पास पॉसिबल नहीं है. तो स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट वैल्यू है. फोटॉन जो आपके पास उसकी लार्जेस्ट स्पीड है. बाकी जो आपके पास जितने भी पार्टिकल हैं, बहुत स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, जितने भी आपके पास हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं वो आपके पास बहुत हैवी, उतनी स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को आप कंपेरेबल विद स्पीड ऑफ लाइट मूव करवा सकते हो, बट एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के साथ आपके पास मूव नहीं करेंगे. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं डिस्कस करेंगे. जितने भी आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के रिजल्ट्स पढ़े, तो ये आपके पास ये जो रिजल्ट्स हैं आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएंगे. थैंक यू.